Students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7 exercise 2b. In earlier video we have completed up to exercise 2a and now we have to solve exercise 2b. First find the product. Product means multiply. Okay. 3 by 5 into 7 by 11. This is called fractional products. In fractional products we normally multiply numerator to each other and denominator to each other. But if numerator and denominator will be cancelled, then we shall cancel. Okay, so here nothing will be cancelled. Then 7 into 3 that is 21 and 11 into 5 that is 55. It means 21 by 55 ये आपका आंसर हो गया. इस फ्लो में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट है 5 by 8 into 4 by 7. So 5 into 4 and 8 into 7, then 4 to the 8, then 5 by 7 to the 14 answer. Okay, in this way we can solve all these questions. Like 6 5 by 8 into 1000, then firstly we cancel this. Okay, and after that we can solve. Now question number 2, simplify. Just like question number 1 we can solve such type of questions. Now here 5 7 the 35. Okay, and remaining 11 3 the 33, 11 4 the 44, and 2 2 the 4, and 3 to 3 cancel, then that is 1 by 14. 1 by 14 here first question, that is 1 by 14. Okay, similarly we can solve all that questions. Now question number 3, find 1 by 3 of 24. Of stands for multiply. Of means what? Of means multiply. So 1 by 3 of 24, it means 1 by 3 of 24, it means 1 by 3 into 24. 1 by 3 of means into and 24, then 3 8 the 24, 8 into 1 that is 8. 8 will be answer. Look here, 8 will be answer. Next 3 by 4 of 32, then 3 by 4 into 32, 4 8 the 32, 8 3 the 24. Again 5 by 9 of 45, then 9 5 the 45, 5 5 the 25. Okay, now 7 by 50 of 1000, then 7 by 50 into 1000, 10 to 10 cancel, and then 5 20 is 100, then that will be 140. Next 3 by 20 of 1020, then 3 by 20 of means into 1020, solve it, we can get answer. Similarly 6. Now 7 4 by 9 of 54 meter, then here unit given, so it does not a matter of unit, we can normally simplify just like earlier methods. Okay, so 4 by 9 into 54, 9 6 the 54, so 4 6 the 24, and here given meter, so answer will be in meter. If here given kilometer, then answer will be in kilometer. Next 6 by 7 of 35 liter, then 6 by 7 into 35, 7 5 the 35, then 6 into 5 that is 30 liter, because here liter given, so here liter will be mentioned. This is compulsory. If here given liter, then we write here liter. If here given centimeter, then we write here centimeter. Okay, now next 1 by 6 of an hour. 1 by 6 of an hour. Listen, then 1 by 6 of an hour. So देखो आवर एक बड़ा यूनिट है, अब उससे उसका 1/6 पूछ रहा है, यानी आवर से वो छोटा यूनिट होगा. जैसे मैं बोलता हूँ 100 है, 100 का 1/6, तो कहीं ना कहीं यह 100 से छोटा निकल कर आएगा. तो आवर से छोटा क्या होता है? मिनट. और हम जानते हैं कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 10 मिनट्स. ओके, अब यहाँ पे आवर नहीं डालेंगे बिकॉज आवर को वो छोटा कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 मिनट में हमारा आंसर होगा. अच्छा, अगर नहीं दिया रहता 1 by 6 ऑफ 10 आवर, तब हमारा आंसर आवर में आता है. सो 1 by 6 इंटू 10 कर देते और तब हमारा आंसर क्या आता? आवर में आ जाता. बट एन आवर दिया है तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेशन 60 मिनट पर करेंगे. ठीक है, नाउ 5 by 6 ऑफ एन ईयर. अब एन ईयर है तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कितने पे करेंगे? 12 मंथ पे करेंगे, क्योंकि ईयर से छोटा 12 होता है और हमारा आंसर भी मंथ में ही आएगा. सॉरी, ईयर का छोटा मंथ होता है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? मंथ में ही आएगा. नेक्स्ट 7 by 20 ऑफ अ के जी. 1 kg, अब के जी 1 kg दिया है, देन हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमारा आंसर ग्राम में आ जाएगा. ठीक है, अब 9 by 10 ऑफ अ मीटर. अब 1 मीटर दिया है तो मीटर छोटा सेंटीमीटर होता है, तो हम इसका आंसर सेंटीमीटर में लाएंगे, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. इट मीन्स
अगर क्वेश्चन में आपको ए दिया हो, जैसे 9/20 ऑफ ए मीटर, ओके, हियर ए के जी, अगेन हियर एन ईयर, इट मीन्स ए और एन दिया हो तो हम नॉर्मली उसको उससे छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर कुछ डाटा हो, जैसे देखिए आप यहाँ पे दिया ऑफ RS 220, यहाँ पे 1 रुपये पे कैलकुलेशन नहीं किया है, तो जिसमें गिवन डाटा होगा हम उसी में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 नहीं दिया हुआ, यूनिट नहीं दिया है, यानी अगर यूनिट दिया रहेगा तो हम घटा करके छोटा यूनिट में उसको कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे। और अगर नॉर्मल यूनिट नहीं दिया, एक से ज़्यादा दिया है, तो हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेंगे और आंसर भी हमारा उसी यूनिट में हो जाएगा। नेक्स्ट 7/8 ऑफ अ डे, फिर 1 आ गया ए डे, तब डे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, तो 1 डे में 24 आवर, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे आवर में आंसर निकल के आ जाएगा। 3/7 ऑफ अ वीक, फिर 1 आ गया, तो 1 वीक में 7 डेज, तो इसको 7 डेज से हम कर लेंगे, ठीक है। और सिंपली इसी तरफ देखिए ए लीटर आया, ए लीटर, अब ए लीटर से छोटा क्या होता है, मिलीलीटर, ml, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिलीलीटर में आ जाएगा। यूनिट को केयर करना है, यूनिट आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके सारे सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्टली यू हैव बी केयरफुल अबाउट योर यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, language type questions. In earlier classes you have done, I think, that how can we solve language based problems by unitary method. Okay, so these questions is mainly depend on unitary method, and firstly you have to prepare a language and after that you have to solve. Here given apples are sold at RS 48 whole 4/5 per kg. It means the price of 1 kg of apple is given. What is the cost of 3 whole 3/4 kg of apple? So the price of 1 kg of apple given, then the price of that kg apple will be what, we can multiply normally. Okay, apples are sold at itna per kg, so price of 1 kg of apple गिवन RS इतना, इसको सॉल्व करेंगे, दैट मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लेते हैं, देयरफॉर प्राइस ऑफ गिवन एप्पल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, हो सकता है PDF में कैलकुलेशन रॉन्ग हो, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करके आंसर खुद से लाना है। ओके, मैं सिर्फ मेथड सजेस्ट करूँगा, बनाना खुद से आपको। कॉस्ट इज बीइंग सोल्ड, सॉरी, क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट RS गिवन पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट दिया है, तो इतना मीटर का कॉस्ट क्या होगा, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई लैंग्वेज। नेक्स्ट, अ कार कवर्स अ शॉर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो कार इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 9 आवर, इसको भी हम क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट, 1 टीन होल्ड्स इतना लीटर ऑफ ऑयल, यानी किसी टीन में इतने लीटर ऑयल वो कंटेन करता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टीन होल्ड्स, जब एक टीन इतना करता है तो 26 कितने करेंगे, इसको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर देंगे लैंग्वेज लगा करके, ठीक है। जैसे 1 टीन होल्ड्स ऑयल इतना गिवन लीटर, देयरफॉर 26 ऑयल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 टीन का निकल जाएगा। नेक्स्ट 8, फॉर ए पार्टिकुलर शो इन सर्कस ईच टिकट, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच मीन्स एवरी वन, cost given, if 308 tickets are sold for the show, how much amount will be collected, then normally we can multiply, okay, by unitary method। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट दिया हो और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकालना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट गिवन हो और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का कॉस्ट आपसे पूछा जाए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट का कॉस्ट गिवन हो और एक का कॉस्ट पूछा जाए, तब आप उस कंडीशन में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये दोनों यूनिटरी मेथड के ही पार्ट है, एक मल्टीप्लाई और एक डिवीजन, ठीक है। 9 बोर्ड्स आर स्टैक में से इकट्ठा किया गया है ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे हम लकड़ियों को रखते हैं एक के ऊपर एक को, उसको स्टैक करते हैं, ठीक है। द थिकनेस ऑफ ईच मीन्स प्रत्येक बोर्ड, दैट इज गिवन, व्हाट इज द हाइट, एक्चुअली हाई नहीं, दैट इज हाइट ऑफ द स्टैक। अब आप बताइए, लकड़ी के लॉक्स हैं, उनको इस सीक्वेंस में कलेक्ट किया गया, जैसे मान लो ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगा करके, ठीक है, और एक की हाइट कुछ गिवन है, तो इनकी पूरी हाइट पूछ रहा है, तो पूरी हाइट क्या होगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड गिवन, देयरफॉर थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स मल्टीप्लाई कर देंगे और वहीं उनका हाइट हो जाएगा, बिकॉज उनकी जो थिकनेस होगी वहीं उनकी मिलकर के टोटल हाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रोहित टेक्स 4 whole 4/5 minutes to make a complete round of a circular park, how much time will he take to make 15 राउंड्स। ओके, एक राउंड को इतने में कवर कर रहा है, तो 15 राउंड्स को कितने में कवर करेगा, तो नॉर्मली इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अच्छा, एक तरह यहाँ पे देखते हैं, जैसे
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 होल 4/5 मिनट्स, इसको हमने सॉल्व किया तो 24/5 मिनट्स हो गया। तो 15 के लिए हमने इतना किया तो 72 मिनट, तो आंसर तो हो गया। बट इसको आवर में हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो 72 मिनट है, तो अब नॉर्मली देखो 72 मिनट है, ओके। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए एक तो 60 मिनट में आपको 1 आवर हो गया और बचा कितना 12 मिनट, तो 1 आवर और 12 मिनट ये आपके आंसर हो जाएंगे। बट आप नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे तो आपको टाइम लगेगा। तो देखिए एक मैं आपको मेथड सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आपको 72 दिया हुआ है मिनट में, इसको आप जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो 62 होगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, देखो 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72। अब इस 5 को 6 में डिवाइड करो, 5 1 जा 5 1.0 5 2 जा 10, ये 1 आवर हो गया, 1 आवर ये हुआ। और ये जो 0.2 आया, 2 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 क्या एक फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि मिनट का 12 पे आकर के कैलकुलेट होगा, ठीक है। बिकॉज 1 में आपको 6 होंगे, 2 का मतलब 12 है, 1 का मतलब 6 होगा, ठीक है। तो इस बेस पे आप कैलकुलेट कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अमित वेट्स 35 kg, हिज सिस्टर कविता वेट, अच्छा इज 3/5 of Amit weight. How much does Kavita weight? Okay, weight actually. So weight of Amit is given 35 kg. Now Kavita is 3/5 of Amit weight. Of means multiply. Then Amit weight 35 kg of 3/5. देन 5 से बन जाए, सो 21 kg इसकी बहन का वेट हो जाएगा। जैसे देखो वेट ऑफ कविता क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ अमित्स वेट, तो 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अमित का वेट 35 kg गिवन, इसको सॉल्व करो 21 kg आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? ओके, टोटल स्टूडेंट्स आर 42 and 5/7 of the students are boys. So firstly number of students 42, total number of students in a class 42, number of boys क्या हो जाएगा 5/7 of 42, यानी 5/7 of मीन्स मल्टीप्लाई 42, 7 6 जा देन 6 5 जा 30, तो नंबर ऑफ बॉयज 30 हो गया 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सपना ऑन्स आर 24,000 पर मंथ, she spent 7/8 of her income and deposit rest of the money in a bank. How much money does she deposit in the bank each month? सपना कोई लड़की है जो कि 24,000 पर मंथ अर्न करती है और वो अपने अर्निंग का 7/8% डिपॉजिट करती है। सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम, सॉरी वो अपने इनकम का 7/8% स्पेंड मीन्स खर्च कर देती है और बाकी को बैंक में डिपॉजिट कर देती है, यानी जमा कर देती है। तो पूछ रहा है कि हर मंथ तो कितने मनी को जमा करेगी, तो देखिए उसका एक मंथ का इनकम कितना है 24,000, अमाउंट स्पेंड कितना कर रही हो 7/8 ऑफ हर इनकम, देन 7/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हर इनकम 24,000, इसको सॉल्व करेंगे 8 3 24, ये इतना हो गया, यानी 21,000 उसका खर्च हो गया। तो टोटल अमाउंट वो बैंक में कितना अब जमा करेगी 24,000 में 21,000 को माइनस कर लेंगे, 3,000 हर मंथ बैंक में जमा करेगी, सेव करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, each side of a square of field is given, find its area. Okay, here given side of a square is 4 whole 2/3, it means 4 3 is 12 and 2 14/3 meter. Side of a square is what 14/3 meter, and we know area of a square is what side square, side is denoted by a, then area of a square is equal to side square, then 14/3 का square, it means square means 2 times, so 14/3 into 14/3, now multiply it and you can get answer. You know a square of 44, that is 196 by 3 3 is 9, so 196/9 a square meter. Square meter means मीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम मीटर को 2 बार लिख रहे हैं, देखो साइड इंटू साइड, तो 14/3 मीटर इंटू 14/3 मीटर आया, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई को मीटर स्क्वायर, इसी को हम स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं। और एरिया कभी भी आपको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसमें आते हैं, आपको एक केयर करना है, ठीक है। और वॉल्यूम कभी भी क्यूब में आते हैं, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे। तो जब भी एरिया निकालना हो तो आप यूनिट को स्क्वायर में मेंशन करोगे, आपका यूनिट सही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ मीटर लिख दिया तो आपके सभी आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। आपने स्क्वायर जरूर लगाना, आप स्क्वायर मीटर लिखो या नॉर्मली मीटर स्क्वायर लिख दो, इसी को हम लोग स्क्वायर मीटर बोलते हैं या मीटर स्क्वायर बोलते हैं।
चूंकि साइड इंटू साइड, हम साइड को 2 टाइम लिख रहे हैं, साइड का स्क्वायर का मतलब ये होता है साइड इंटू साइड, यानी इसको 2 टाइम लिखेंगे। तो 2 टाइम में 14/3, 1 मीटर यहाँ भी आया और 1 मीटर यहाँ भी आया, तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर, इसीलिए एरिया को हम स्क्वायर मीटर में लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट 15, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब देखिए एरिया निकालना है,